Good morning, children. Today I have come up with another topic from your EVS. For that, you will have to take out My Best Book 7, and that is chapter 12, as you can see, and page number 2. The topic's name is Air and Water. So, children, why do we need air and water? Do you know that air and water are the basic necessities of our life? Without air or water, we cannot survive. We can survive for a few days without food, but without water or without air, we won't be able to survive longer, right? So, children, I'll tell you the importance of air and water individually. So, come, children, let's check. So children, as you are aware of the fact that air is the most important thing for us to survive. Any living object cannot survive without air, okay? Still we can survive without water for 1 or 2 days. We can survive without food for more than 1 month. But yes, without air we cannot survive for few minutes, okay? So here is a puzzle which I have already filled it up. This is what is this? This is water. W-A-T-E-R, water. What is this? This is rain. R-A-I-N, rain. What is this? This is ice. So, I-C-E, ice. What is the child blowing? The child is blowing air. A-I-R, air. Okay. You must have seen a kite flying. What makes it fly? It is the air that makes it fly. I'm sure children, some of you love to fly kites, right? But can the kite go up into the air without any air, like up into the sky without air? आसमान में क्या पतंग कभी भी उड़ सकता है हवा के बगैर? वो नीचे से उठेगा भी नहीं, right? So it needs air to lift it up. उसको उठाने के लिए air चाहिए, ठीक है? What do you do when you want to blow a balloon up a balloon? You blow air from your mouth into the balloon. जब आप गुब्बारे फुलाते हैं तो आप हवा उसके अंदर भरते हैं तभी गुब्बारा फूलता है ना? So that is what it is meaning, okay? More about air. Air is everywhere around us. Though we cannot see it, we can feel it. So children, air is there everywhere, but we cannot touch it. We cannot see it. Yes, we can feel it. If it gets mixed with dirt, then we can see it as well. Like अगर धुआं गंदगी के साथ मिल जाता है तो अगर हवा गंदगी के साथ मिल जाता है तब हमें दिखता है. जैसे कि धुआं जो चिमनी से निकलता है धुआं, वो जब कार्बन के साथ मिलता है तो काला धुआं दिखता है, तो हमें तब एयर दिखता है. वरना वैसे नॉर्मली हमें एयर दिखेगा नहीं, ओके? वी कैन नॉट सी द प्योर फॉर्म ऑफ एयर. वी कैन जस्ट फील इट. हमें सिर्फ महसूस होगा. जब हवा चलता है, फैन लगता है हमारे शरीर में, तब क्या लगता है एक्चुअली? दैट इज़ एयर. तो हम उसको फील कर पाते हैं, लेकिन उसको छू नहीं पाते और ना ही उसको हम लोग पकड़ पाते हैं, ना उसको देख पाते हैं, राइट? ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ. मैंने आपको बताया था सारे जीवित जो चीज़ें रहते हैं, जैसे प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, सबको एयर चाहिए. जीने के लिए हम सबको एयर चाहिए, ओके? एयर टेक्स अप स्पेस. हाँ जी, एयर को जगह चाहिए, ठीक है? दैट इज़ वाई अ बलून गेट्स बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट. देखो, बैलून तो चपट होता है, वो फ्लैट होता है ना, चपट होके रहता है. अब हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो एक जगह वो ले लेता है ना, एक गोलाकार ले लेता है, एक जगह लेता है, एक स्पेस. एक बैलून को रखने के लिए एक जगह चाहिए. एक चपट बैलून को ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, लेकिन एक फूला हुआ बैलून या फिर एक फूला हुआ गुब्बारा को ज़्यादा जगह चाहिए. मतलब इसका मतलब क्या है? एयर जगह लेता है. एयर टेक्स स्पेस, ओके? Air always blow in a certain direction. The movement of different objects along with the air tell us about the direction in which the air is blowing. हवा क्या हमेशा एक दिशा में बहता है, ठीक है? The movement of air of different objects along with the air tell us about the direction. देखो, जब हम लोग कहीं पे खड़े रहते हैं और घास एक तरफ मुंह करके उड़ रहा है तो हमें पता चलता है हवा उस दिशा में बह रहा है. अगर आपको जानना है कि हवा किस दिशा में बह रहा है, आपने सिंपली एक काम करना, एक घास उखाड़ लेना ज़मीन से और उसको हवा में दिखाना. जिस दिशा में वो घास मुड़ जाए उस दिशा में हवा बह रही है, ओके?
आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे पेड़ एक साइड में झुक जाता है, मतलब हवा यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है। नाउ फिश, where do they get it from? Fish live in water. How do they get air to breathe? See बच्चों, पानी में भी हवा मिला हुआ रहता है, air is mixed in water also, okay? तो मछली उसी हवा को अपने गिल से वो उसको फील कर लेती है, उसको फिल्टर करके वो यूज़ कर लेती है, ओके। देन हाउ डू दे गेट एयर टू ब्रीथ? फिश यूज द एयर प्रेजेंट इन वाटर। देखो मैंने बोला था पानी में हवा होता है, एयर होता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, उनकी जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं काती, मुझे नहीं पता है गिल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, लेकिन उड़िया में हम लोग कहते हैं मछली माछर काती। सो वो जो काती होता है ना, उसमें से हवा वो लेके वो सूंघ लेते हैं, वो लोग ब्रीथ करते हैं। Now, wind. Moving air is called wind. A slow and gentle wind is called breeze. A strong and fast wind is called a storm. Storm can be very dangerous. It can blow away things like trees, houses, etc. तो चलती हवा को हम लोग wind बोलते हैं। एंड जो हल्का सा थोड़ा तेज़ होता है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं होता है, जेंटल होता है, बहुत मुलायम सा लगता है जो हवा, हम उसको ब्रीज बोलते हैं। जैसे आप नदी किनारे जाके बैठते हो, एक बहुत चंचल हवा आपको लगती है, दैट इज़ ब्रीज। वो हमें ब्रीज अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ब्रीज के नीचे बैठने से मज़ा आता है। लेकिन स्टॉर्म होता है तूफान, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत ज़ोरों से चलती है, बहुत तेज़ चलती है और उसमें बहुत ताकत होती है, तो वो हवा हम उसको क्या बोलते हैं? वी टेल इट एज स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, अलॉन्ग विद इट रन्स इन अ वेरी फास्टर पेस। अगर कुछ भी उसके सामने आए ना, वो उड़ा ले जाएगा, वो चाहे घर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, वो उखाड़ के जड़ से ही उखाड़ देगा। तो अभी हम लोग का फोनी हुआ था, आपको याद होगा फोनी में कितना सारा नुकसान हुआ था, बहुत लोगों का घर उड़ गया था, बहुत लोगों के पेड़ पौधे गिर गए थे, है ना। तो क्यों हुआ था? बिकॉज दैट वॉज अ स्टॉर्म। व्हेन द स्टॉर्म is very furious, it can break down your house as well as trees. So remember that, do not go out of your house when there is a storm, okay? Use of air, it helps plant to breathe and grow. तो हम एयर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? वो प्लांट को और हम लोग भी ब्रीथ करते हैं एयर को और हम बढ़ते हैं, वैसे प्लांट भी ब्रीथ करता है एयर को और वो बढ़ता है। एयर हेल्प्स वेट क्लॉथ्स टू ड्राई, तो हवा के चलते गीले कपड़े को सूखने में मदद मिलती है, राइट। When the cloth is put on the wire, it is just because of the air that it gets dry, okay? Air helps things like the kite, bird and aeroplanes to fly. तो एरोप्लेन हो या पतंग हो या चिड़िया, वो आसमान में इसीलिए उड़ पाता है क्योंकि आसमान में हवा है, there is air, वरना वो नहीं उड़ पाता। Air helps things to move from, for example, it makes a boat sail. It also moves the blade of a windmill. तो वो एक बोट को तैरने में भी मदद करता है, एक यॉट को तैरने में भी मदद करता है, एक विंड मिल को घूमने के लिए भी एयर चाहिए। सो चिल्ड्रन, आई बिलीव आपको समझ में आ गया ये एयर क्या है, ओके। अगर आपको डाउट होता है आप प्लीज़ बेझिझक मुझे पूछ लेना, ओके। देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, dirty air is also called polluted air. Air gets dirty because of the germs, dust or smoke from vehicles and factories etc. वैसे भी एयर को तो पोल्यूट हम खुद ही करते हैं, थोड़ी ना मनी अपने आप ही हो जाता है, हम ही लोग एयर को पोल्यूट करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत ज़्यादा गाड़ी चला के उसमें से जो धुआं निकलता है वो एयर के साथ मिलता है, एयर पोल्यूट हो जाता है। फैक्ट्री में से जो इतना मोटा सा धुआं निकलता है वो भी हवा में मिल जाता है और एयर दूषित हो जाता है, राइट। सो इन दैट केस we should be very aware of that, okay? We should try to not to make the air more polluted. So hopefully children, I am clear to you. In case you have any doubt, please contact me, call me and I will be able to help you. Till then, bye bye, take good care of yourself.